All right. Hello, guys. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So again, we welcome you all here in this series where we will be taking care of where we generally take care of English and verbal ability like section in C for CUET examination. And as we all know today, again we this is Tuesday. So on Tuesdays we discuss vocab. All right. So Mondays reading comprehension, Tuesdays vocab. Tomorrow we'll be dealing with some topics from grammar. ऐसे ही करके हम लोग काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद वोकैबुलरी सो हम कुछ वर्ड्स को करेंगे भी पढ़ेंगे भी एंड ऑल्सो वी विल हैव सर्टेन क्वेश्चंस है ना तो देयर वी विल ट्राई टू टेस्ट आवर वोकैबुलरी है ना इट इज नॉट गोना बी अ वेरी लेंथी सेशन जैसे हम जनरली करते हैं कि बहुत लेंथी हो वैसे लेंथी सेशन वोकैबुलरी में रिक्वायर्ड नहीं होता वो उसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितने वर्ड्स को किया तो हम टारगेट करते हैं कुछ 50-60 ऑड वर्ड्स ताकि हम ओवर द वीक्स आप लोगों को इतना वोकैब अपनी तरफ से दे पाए दैट यू गो आउट देयर एंड अटेम्प्ट दोस एग्जाम the examination and you'll get all the questions that will be coming from our directly from our discussion okay chalo hi everyone hello chaliye so without wasting much time now we'll directly move towards our like the words जो कि हम लोग आज करने वाले हैं okay so as you can see here on the screen the first set of words यहाँ पे word cluster के बारे में हम बात कर रहे हैं so let's talk about those things जहाँ पर हाँ सो जहां पर हम लोग वर्ड क्लस्टर क्रिएट करेंगे है ना तो वील कम अप विद सम आइडिया एंड अराउंड दैट आइडिया वी विल टॉक अबाउट सर्टेन वर्ड्स है ना हाय हाय आरिफ आर्यन हेलो प्रज्ञा हाय शान हेलो चलिए सो द वेरी फर्स्ट area from where we have taken this word is the term serene. All right, so something that is serene. What do we mean by the term? So the environment over there was very serene. So if it is very serene, it is very calm. बहुत काम था वहां पर जो भी चीज थी ठीक है तो बड़ा हैप्पी द पॉजिटिव वर्ड सो दिस इज एनीवेज अ पॉजिटिव वर्ड सो व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग बीइंग सीरीन यू टॉक अबाउट इट बीइंग काम ठीक है सो द कामनेस इज देयर सो दैट इज फॉर द वर्ड सीरीन आज सीरीन के साथ साथ आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो जैसे ट्रैंक्विलिटी अभी ट्रैंक्विलिटी यदि आप बोलते हैं तो ट्रैंक्विलिटी रिफर्स टू समथिंग है ना some place that tranquil यदि आपने बोला है वहां पर so talking about some place that is quiet some place that is peaceful some place that is that where there is no disturbance all right so a lot of things can be there so I've written it here so that you can like take the screenshots as well तो आपके revision purpose के लिए वो चीज आ जाएंगी अदरवाइज मैं वर्ड्स बताता था मीनिंग बताता था तो आपको रिवाइज करने के लिए उस वीडियो को फिर से देखना पड़ता है इसलिए हम लोगों ने ये चीजें यहाँ पर लिख भी दी हैं आप लोगों के लिए so that you can take note of it all right so serene was something that is calm when you talk about tranquil so tranquil is another word which reflects the calmness so some place which is quiet some place which is peaceful free from disturbance that is where you can use the term tranquil. Okay. Sedate is the next term. The part of speech here is adjective. So sometimes if they are interested in asking questions from grammar also, they can ask or they can create questions keeping in mind कि vocabulary भी test हो जाए और हम grammar को भी test करें तो वो in the form of fill in the blanks या in the form of match the columns तुम्हें कुछ वर्ड्स दे सकते हैं और जो दूसरा कॉलम होगा उस पूरे कॉलम में दे कैन गिव यू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना एंड देयर यू विल हैव टू टेक अ कॉल रिगार्डिंग ईच एंड एवरी वर्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पीच और उस हिसाब से आपको मैच द कॉलम जो है आपका आंसर करना पड़ेगा ऑलराइट सो फॉर दैट वी आल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड इन द रो that is sedate again sedate is a synonymous for these words serene or tranquil so that is again very quiet calm or someone who is well behaved है ना so that ways we can use the word sedate then solemn यदि if you talk about this word so solemn is some person who is really now people who are very formal people who are very serious people who are like serious in the manner that where they are reserved at the same time
ठीक है, तो थोड़े रिजर्व से लोग होते हैं ना। इफ यू टॉक अबाउट योर मैनेजर्स, सो अ मैनेजर कैन नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अब वो मैनेजर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा अपना स्पेस बना के रखते हैं लोगों से। किसी भी कंपनी के मालिक को देखोगे तो डायरेक्टली जाके वो इस तरीके से दोस्ती नहीं कर रहा होता है ना। तो वो एक एक अपना अ, जो पर्सोना है वो इस तरीके से क्रिएट करके रखता है कि वो थोड़ा सा रिजर्व दिखे, वो थोड़ा सीरियस दिखे, है ना, वो बहुत फॉर्मल सा दिखे, वो बंदा बहुत ज्यादा डिग्निफाइड सा दिखे। सो दैट पर्सन रेफर्स टू सोलम। दैट इज सेडेशन। अब वो एक अलग चीज हो जाती है। वो सेडेट करने का मतलब होता है, हाँ, सो वो आप सोमनिया से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हेन यू वांट द अदर पर्सन टू फॉल asleep, ठीक है, तभी आप वो सेडेटिव्स यूज करते हो। तो वो सेडेटिव्स एक अलग मेडिकेशन में टर्म आ जाता है, आर्यन, ठीक है, जो सेडेटिव्स हम यूज करते हैं। सो सेडेट इज अगेन टू पैसिफाई, है ना। व्हाट इज इट? ये पूरा का पूरा जो आप एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हो कि समथिंग जो कि पीसफुल है, क्वाइट है, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस है, काम है, राइट, फॉर्मल है, डिग्निफाइड है। आप इसको पैसिफिक भी तो बोल सकते हो। समथिंग दैट इज पैसिफाइड, समथिंग दैट इज पैसिफिक। सो आप ये टर्म भी वहां पर यूज कर सकते हो। सो वी कैन यूज दैट इन दैट सेंस ऑल्सो, है ना। एंड दैट इज वाई वी कॉल दोज थिंग्स सेडेटिव्स। क्यों? क्योंकि वो काम कर देंगे आपके नर्व्स को, ठीक है। समथिंग दैट इज प्लेसिड। प्लेसिड के बारे में बात करोगे तो यस, प्लेसिड इज समथिंग वेयर थिंग्स आर लाइक वेयर अगेन कामनेस इज देयर, है ना। एंड प्लेसिड इज अ वेरी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर नहीं सकते, ठीक है। सो नॉट इजीली एक्साइटेड, इवन टेम्पर्ड, काम हेडेड, कूल हेडेड, दीज आर लेवल हेडेड, दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज देयर, ठीक है। सो वो प्लेसिड है। एक टर्म होता है जो कि जिसको बोलते हैं इंसिपिड। So something that is insipid has gone tasteless या colorless, ठीक है, जिसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वर्ड क्लस्टर तो हमने किया। सीरीन वाज द वर्ड विच रिफर टू कामनेस, देन ट्रैंक्विल, सेडेट, सोलेम, प्लेसिड, दीज ऑल आर द वर्ड्स जिनको हम इस पर्टिकुलर क्लस्टर में रख सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर वर्ड्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। यदि ये वर्ड्स तुम्हें आते हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। नहीं आते हैं तो हम कर ही रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लस्टर, abide. When you abide by something, the citizens are abided by the law. All right. So what we do is we accept to act in accordance with the law. जो भी लॉ लिखा हुआ है हम उसी लॉ के अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए we are abided by it. All right. So that is to abide. Abide is to obey. Now, जब आप इस तरीके से ओबे करने के सेंस में बात करोगे तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक adhere to. Now, when you say you adhere to something, it means what? You again stick firmly to that particular thing. ठीक है कि नहीं, ये चीज है तो इसको मुझे फॉलो करना ही है. So I am abided by the law and I am adhered to law. So अब जब आप सेकंड एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो you are talking about your involvement there and you are saying कि no, I stick firmly to this particular thing, है ना। तो I follow this particular thing, and if I am abided by the law, so I will have to follow the law. Whatever law says, I will have to follow it. So that is a kind of obligation upon me. But on the other end, बट ऑन दी अदर एंड जब आप, हाँ, जब आप अधेयर टू बोलोगे तो वहां पर आप अपने इंटरेस्ट को भी शो कर सकते हो, तो दैट इज अधेयर। एक्विसेंस, एक्विसेंस के बारे में यूज करो। अगेन आप एक्विसेंस के बारे में बात कर रहे हो तो वो लोग जो कि सर्वाइल होते हैं, तो एनीथिंग दैट यू से इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल सिंपली अग्री टू इट विदाउट आर्ग्यूमेंटेशन। वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वो कोई भी ऑब्जेक्शन वहां पर प्लेस नहीं करेंगे। सिंपली व्हाट दे डू इज they go out there and they say कि okay, whatever you're saying, I acknowledge that and I live by it. Means that situation, that is the situation where you can use the term acquiescence, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैसिव एक्सेप्टेंस और सबमिशन। सो जब मैंने आपको बोला कि वो एक सर्वाइल सा एटीट्यूड होता है, सर्वाइल इन द सेंस कि वॉट एवर यू से ओके आई अग्री टू इट, सो दैट इज एक्विसेंस। नाउ एक्विसेंस इन एंड एक्विसेंस टू, यहाँ पर हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशंस ले रखे हैं। जो फ्रेजल वर्ब्स, मतलब जो वर्ब यहाँ पर आपके प्रिपोजिशंस है, ये प्रिपोजिशंस यहाँ पे अलग हुए हैं। व्हाई? बिकॉज इसके यूजेज जो है वो डिफर करते हैं। आप यदि यहाँ पर देखोगे तो एक्विसेंस इन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू यूज दिस एक्सप्रेशन एक्विसेंस इन, इट इज पैसिव अग्रीमेंट विद समथिंग।
विल दे एक्विसेंस इन एनी डिसीजन रिलेटेड टू दिस, तो क्या वो चीज में अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, पैसिवली। बट एक्विसेंस टू को आप देखो, submit your voluntary to a situation, submit voluntarily to a situation, thing or condition, the mother acquiesced to the baby's demand। अब जब हमने यहां पर acquiescence in किया तो हम बोल रहे थे will they acquiescence in any decision related to this, will they passively affirm to it, will they passively accept it। तो हम वहां पर यहाँ पर चीजों को लेके थोड़े ड्यूबियस भी हुए कि हाँ इस चीज में वो चीज वो लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हम इस सेंस में ले रहे हैं। वॉट एवर आई एम अग्रिंग टू, एक्विसेंस टू के लिए यूज करूंगा मैं वहां पर, ठीक है। तो दैट्स द सेंस ऑफ दैट्स द चेंज ऑफ डिग्री ऑफ दैट agreement, all right, from the people। So abide is to obey, adhere is to to stick to something, है ना, firmly, वो मेरा एक इंटरेस्ट है वहां पर। देन एक्विसेंस के बारे में हमने बात करी, so without an argument if you are accepting something that is acquiescence, ठीक है। यस आर्यन। फिर हम आगे आते हैं हियर, हमने अधेयर देखा, एक्विसेंस देखा, है ना, अबाइड देखा, यहां पर अट्यून भी है। नाउ यू अट्यून समथिंग इज व्हेन यू मेक समथिंग हैपन, राइट। सो यदि मुझे वहां पर अग्रीमेंट क्रिएट करना है किसी सिचुएशन में, तो जब मुझे वो अग्रीमेंट क्रिएट करना होगा, तो आई एम गोइंग टू अट्यून ऑल दोज हु आर अगेंस्ट अस इन दिस पर्टिकुलर फिनोमिना वेयर दे विल सपोर्ट अस। सो वो अट्यून करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, accustom or acclimatize, make harmonious, make someone able to understand something, he has attuned himself to living in a quiet country, a new parent has to attune to the baby's schedule। मतलब क्या करना है, अभी वहां पर हारमोनी क्रिएट करनी है। सो आई कोप अप करना है जैसे सिचुएशन को बोलते हैं, बट किसी चीज को अट्यून करोगे तो यू विल मेक एफर्ट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन। परसुएशन कैन बी अ वेरी गुड वर्ड, परसुएड, वेरी गुड आर्यन, ठीक है। सो दैट इज फॉर अट्यून। एसेंट, इन्हीं वर्ड्स पे फिलर्स आएंगे, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यदि आपको ये पता भी है तो आप रिवीजन मोड में चलो, और उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो आई वांट द आंसर्स करेक्ट, ऑलराइट। सो दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। इसमें हम लोगों को सिर्फ वर्ड्स करना है, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, हम उस वर्ड्स को करें, उस वर्ड लिस्ट को खत्म करेंगे, और जैसे ही वो वर्ड लिस्ट खत्म होती है वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, एंड देयर वी विल बी सोलली फोकसिंग अपॉन गेटिंग द आंसर्स करेक्ट, ओके। एसेंट, अब आपका एसेंट है उसमें, आप अग्री करते हो किसी चीज से, मगर जब आप एसेंट की बात करते हो तो इट इज अ वर्ड और इट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मल, दैट इज यूज्ड टू कन्वे द फॉर्मल अग्रीमेंट, है ना। सो फॉर्मल एसेंट, यदि आप देते हो किसी चीज को, आई असेंट टू दिस, दिस मीन्स व्हाट, आपने ऑफिशियली अग्री किया किसी चीज के लिए, राइट। सो दैट ऑफिशियल अग्रीमेंट ऑफ समथिंग इज व्हेन यू असेंट समथिंग, ठीक है। देन when you talk about comply, तो comply means again जैसे आपने बोला abide था, ठीक है, फिर हमने adhere to किया। when you adhere to something you will have to comply with it, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आप किसी चीज को मान रहे हो कि नहीं स्ट्रिक्टली मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, तो फिर आपको उन चीजों में जो भी चीजें, जो भी टेनेट्स वहां पर हैं, उस पर कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर लॉ और इन दैट पर्टिकुलर रूल, ठीक है। सो कंप्लाई विथ व्हाट, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ विश और कमांड, टू कंप्लाई विथ, ठीक है। देन कंफर्म, कंफर्म का मतलब ही एक्चुअली देखो, कंप्लाई हमने यहां पर यूज किया, कंफर्म कर रहे हो किसी चीज को तो आप उससे अग्री कर रहे हो, ठीक है। आप यू आर अबाइडेड बाय द लॉ, सो यू कंप्लाई विद द रूल्स, तो आपने कंप्लाई किया रूल्स के साथ, कंप्लाई कर रहे हो मतलब आप वहां पर उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस, यू मस्ट कंफर्म टू द स्कूल रूल्स, तो स्कूल रूल्स को आपको यू हैव टू कंप्लाई विद, अगेन द सेम सेंस इज क्रिएटेड, कंसेंट। ही वॉज अनेबल टू कंप्लाई विद हर रिक्वेस्ट, जो अब अनेबल इनेबिलिटी दिखा दी यहाँ पर, तो नेगेटिव सेंस में डिस्कस किया, बट जो उसका वर्ड मीनिंग है वो कंप्लाई विथ ही आना है, ठीक है। तो सिनोनिमसली यू कैन डील विद दीज टू सिचुएशंस। कंडोन इज अ different word. Now you accept something, you condone something is you accept something, but you accept something that is very risk. Means what? People generally do not believe upon that thing. अच्छा, if you go out there and work in the rural areas of हरियाणा और पंजाब, alright, और तो वहां पर जो खाप पंचायत हैं या ये सारी की सारी चीजें, तो वहां पर उन खाप पंचायत में एक एक अलग सा इंडिग्नेशन है इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर। बट यदि आप वहां पर जाके आइकोनोक्लास्ट की तरह बिहेव करोगे, तो व्हाट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज एन आइकोनोक्लास्ट?
Anyone knows the meaning? Iconoclast. What kind of a person is an iconoclast person? So iconoclast is a person who is unorthodox. Iconoclast is a person who is unconventional. Iconoclast is a person who is innovative, who breaks the symbols और icons. ठीक है? तो वो बहुत पहले से चली आ रही चीजों के अगेंस्ट बात करेगा. ठीक है? अमेनेबल. अमेनेबल के लिए बात करोगे तो कंप्लायंट है. अ पर्सन हु कैन बी इजीली परसुएडेड. अमेनेबल है तो आप इजीली उसको परसुएट कर सकते हो, इजीली अट्यून कर सकते हो उसको. सो आप जब इन चीजों को यूज कर रहे हो तो आप इन्हीं वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो सिचुएशंस में. तो ट्राई टू क्रिएट सर्टेन सिचुएशन वेयर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, है ना, एंड इन द ग्रुप्स. सो दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स विद एफिशिएंसी. ओके. मूविंग फर्दर, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत एफिशिएंट बनाना है इस प्रैक्टिस को. यस. ओमन. नो, व्हेन यू टॉक अबाउट ओमन, ओमन इज समथिंग विच इज अ साइन विच रिफ्लेक्ट्स अ साइन. ठीक है? यदि हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसा ओमन है जो कि हमें लग रहा है, हम घर से बाहर निकले और किसी ने छींक दिया. ठीक है? हम घर से बाहर निकले और बिल्ली रास्ता काट गई. तो हमारे घर पे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम 5 मिनट रुको, पानी पियो, उसके बाद जाना, थोड़े डिले के बाद जाना. तो वो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दे कंसीडर इट इलोमन. इलोमन मतलब sign of something bad to happen. That is ill-omen. There's one more word for it. Uh, ये मैंने आपको बताया था. Harbinger of doom. Harbinger of doom. So harbinger refers to again a sign. So वो omen ही है. Harbinger बोले तो omen. But harbinger of doom बोलोगे तो doom refers to something that is ill. So again a sign for something bad to happen is harbinger of omen. ठीक, harbinger of doom. ठीक है? So ill omen. ओमन के लिए क्या हुआ? अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज ओमन. हाँ, अशुभ. फिर ऑगर. ऑगर. Now, you augur something means what? You actually try to take to get an idea about something positive or negative of as a consequence of your action. All right. So if you are going out there and if you are after killing someone, all right. So वहां पर उसके consequences ये होंगे कि तुम्हें जाके जेल में बंद कर दिया जाएगा. ठीक है? तो वो क्या है? वो उसका कुछ बैड आउटकम है जो हमने गेस किया. तो पोर्टेंड अ गुड और बैड आउटकम ऑफ समथिंग. ठीक है? तो जिस चीज को आप पहले गेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज टू ऑगर द रिजल्ट ऑफ समथिंग. टू soothsayer, clairvoyant, fortune teller. The enemy's arrival augurs disaster for the natives. मतलब यदि वो आए हैं, लोग जो अगेंस्ट है उनके, तो यदि वहां पर वो लोग आए हैं, एनिमी आया है, तो एनिमी के आना ही एक चीज में इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके लिए खराब है. So that is when and that is how you can use it. Like the other one, mounting sales augur a profitable year. तो सेल्स बढ़ रही है, इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, इससे ये प्रिडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो साल होने वाला है ये बहुत ल्यूक्रेटिव और प्रॉफिटेबल होने वाला है फॉर द फर्म. सो यहाँ पर आपने ऑगर का यूज किया. ठीक है? सो यू आर गेजिंग द consequence, you are gauging the result of a particular thing as bad or good. All right, that is to augur. Omen is a sign. It is neutral as of now. ओमन बोला तो न्यूट्रल है. इल ओमन बोला तो फिर वो गड़बड़ है. ठीक है? इल ओमन में वो खराब चीज, अपशगुन, अशुभ. ऑलराइट. ऑस्पाइस. ऑस्पाइस अगेन इज अ नाउन. ऑगर इज अ वर्ब. ओमन वाज अ नाउन. ठीक है? हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिख रखे हैं यहाँ पे. ऑस्पाइस के बारे में बात करोगे यदि आप, तो ऑस्पाइस क्या बोलता है? ऑस्पाइस सेज कि आपने क्या किया, अब ये अपॉर्चुनेट है, ये ना, ये पॉजिटिव है वर्ड. ठीक है? डिवाइन टोकन, patronage and guidance. He took that as an auspice of happiness. Financial aid is being provided under the auspice of the International Monetary Fund. So अब जैसे ही आप बोले थे कि ill omen है, so ill omen was on the negative side. ठीक है? Harbinger of doom was on the negative side. But auspice के यदि बारे में बात करोगे, this would be on the positive side. ठीक है? Auspicious कैसे बोलते हैं? Auspicious occasion of this और दैट. सो ऑस्पिशियस में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंस लिया, तो ऑस्पाइस भी वही है. ठीक है? फिर फोरटेल. फोरटेल इज टू से समथिंग अबाउट व्हाट वुड हैपन.
सो किसी भी चीज को प्रोडक्ट करना और बताना कि वॉट एवर इज ऑन द कार्ड्स, तो आगे क्या हो सकता है. सो टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो प्रोफेसी, प्रेडिक्शन, जैसे सिंपली वर्ड्स उससे रिलेट करते हैं. अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, सो दैट इज टू फोरटेल समथिंग. मुझे सब दिखता है, मुझे सब पता है ना. जैसे बैटिंग होती है, गैम्बलिंग है, जैसे आप बोल रहे हो वैसा. फिर प्रिसेज. प्रिसेज इज समथिंग. प्री आया ना, प्री मतलब बिफोर समथिंग. सो प्रिसेज विच प्रिसीड्स एन एक्शन. ठीक है, तो जो पहले आएगा. प्रिसेज मतलब यदि आपने ये बोला कि हमारा जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, यदि हम बात करें कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो ये सारा प्रिसेज है रुपी के वैल्यू के डाउन होने का. ठीक है, कि रुपी का वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ऐसे प्रिसेज यूज करते हैं. यहाँ पर है प्रिसेज. बी अ साइन और वार्निंग ऑफ योर फीवर वॉज द प्रिसेज ऑफ हिज इलनेस. डार्क क्लाउड्स प्रिसेज हैवी रेन्स. तो पहले प्रिसीड किया उस चीज ने, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि आगे क्या होगा. ये चीज हो रही है, इसका मतलब आगे ये होगा. तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे करके. राइट, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू वर्क अपॉन दिस थिंग. नाउ moving further to the next part here, I will take you to the next slide now. And we'll have another word list. Okay, so here we are. हरबिंगर मैंने ऐसे ही आप ये बता दिया आपको. हरबिंगर यदि है तो हरबिंगर refers to a sign of something again, like omen. तो ओमन को हमने जैसे यूज किया था वैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं हरबिंगर को. इल ओमन, तो इल ओमन में इल इल है ना बेटा आर्यन, सो दैट इज नेगेटिव. सो हरबिंगर ऑफ डूम जो है वो इल ओमन हो सकता है. ठीक है. अब हरबिंगर ऑफ डूम का अपोजिट क्या होगा? हरबिंगर ऑफ फॉर्च्यून, ऐसा भी हो सकता है. तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वहां पर. A sign to show that something will happen soon. November wind became the harbinger of the forthcoming winter. मतलब a sign of something. So simply the meaning of it is a sign of something. Then herald, to be a sign that something is going to happen soon. Again you can use it as presage. Again you can use it as harbinger. Official messenger. The new blossoms are the herald of the spring. But here the things are more inclined towards being definite, कि ये तो होना ही है. ठीक है. प्रिकर्सर. प्रिकर्सर अगेन, प्रिकर्सर के बारे में बात करोगे तो प्रिकर्सर भी पहले ही आ रहा है ना. प्री, यहां पर भी वो वर्ड आया. तो समथिंग दैट precedes something and indicates about something that is gonna happen after it. Okay, so a person or thing that comes before something similar. So something that precedes or approaches before another. ठीक है. अब रोहित शर्मा बैटिंग करने आया के राहुल के साथ. अब रोहित शर्मा आया, रोहित शर्मा का आउट होना इंडिकेशन है कि विराट कोहली विल वॉक इन. सो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. द रेडियो वॉज अ प्रिकर्सर टू द टेलीविजन. द फर्स्ट रॉबिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्प्रिंग. ठीक है. सो आपने क्या बोला? जब रेडियो आया, रेडियो का आना प्रिकर्सर था टेलीविजन के. तो पहले रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया. ठीक है. ओके, मूविंग फर्दर. एस्टोनिस्ड, सरप्राइज और वंडर. सो आई वॉज एस्टोनिस्ड, इस तरीके से बोलोगे. तो you were surprised or you were wondering about something. So that is astonishing. ठीक है. Wonderful. Astounded, यदि आप बोलोगे तो astounded again refers to surprise. So that is astounded. Some intensity is higher. ठीक है. Then we move towards awestruck. So he was awestruck when he saw him batting. He was awestruck when he saw the bride coming or walking through the aisle. यदि इस तरीके से हमने बोला, so he was awestruck मतलब filled with awe, admiration or respect. So he was awestruck ऐसा. So again, the sense of सरप्राइज और सेंस ऑफ वंडर वो चीज ही मेंटेन करी है हमने. डम फाउंडेड और डम स्ट्रक, डम फाउंडेड और डम स्ट्रक दोनों ही आप वहां पर यूज करते हो. जब आप बोलते आई वॉज डम फाउंडेड मतलब
आई डिड नॉट नो कि भाई किस तरीके से मैं रिएक्ट करता वहां पर, बिकॉज आई वॉज सो इट वॉज सो लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी that I could not choose how to react, है ना, I could not decide how to react. So in that case I always use the term dumbfounded or dumbstruck. ठीक है, so very surprised or so surprised that not able to speak, that is dumbstruck or dumbfounded. So these two expressions we usually do not use in the general sense, है ना. कभी कभी हम यदि देखेंगे कि बहुत ज्यादा ही सरप्राइजिंग कोई चीज हुई, कोई चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग हमारे पास हुई, तो हम वहां पर, या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हुई है, तो हम वहां पर ज्यादा यूज करते हैं डम्फाउंडेड और डम्बस्ट्रक. ठीक है. फ्लैबागास्टेड अगेन refers the same thing. You are extremely surprised and shocked, but फ्लेबरगास्टेड मीन्स यू आर शैटर्ड. आपने तो बहुत, आपका मतलब इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा वाला सेंस में यू आर सेइंग आई वाज फ्लेबरगास्टेड. सो देयर दैट द इंटेंसिटी इज द हाईएस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टर्म देयर. ठीक है. एंड स्टूपिफाइड अगेन व्हेन यू से, तो थोड़ा सा जो सेंस आ रहा है वो उस नेगेटिव सिनेरियो की तरह जाएगा कि आई वाज डम्बाउंडेड, आई वाज डम्बस्ट्रक, आई वाज स्टूपिफाइड. ठीक है. सो ये एक सिनोनिमस एक्सप्रेशन का पूल बना सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. ओके. आई थिंक दिस इज, हाँ, काइंड ऑफ द सेकंड लास्ट स्लाइड. इसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे. ठीक है. जेनिथ. जेनिथ. Now, when you talk about zenith, zenith is the pinnacle. It is the highest point, peak, and a zenith of success. So, if you want to be there, and if you want to go to the zenith of success, achieve the zenith of success, you are supposed to work day in and out. All right. आप with all your sweat in. So आपको वो पूरा blood and sweat काम करना पड़ेगा. यदि if you want to be there and sit on the top. So zenith of success is that. So the peak, highest peak of the success, that is zenith. So, sorry. Huh. So zenith means the highest point reached, pinnacle, the most important or successful part of something. So the highest point there. Acrophobia is acrophobia, yeah. Acrophobia is fear of height. है ना? That's a different thing. Chalo. Apex. Apex, again, the uppermost point or the top of something. Apex is the word that you can use there. Apogee you can use there. All right, the highest point in the development of something. That is apogee. ठीक है. फिर आप एक्मे को यूज कर सकते हो. सो एक्मे यहाँ पर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट, मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना. जैसे आप उसको बोलते हैं एपिटोम बोलते हो, उस सेंस में आप यूज कर सकते हो उसको. ठीक है. फिर फिर आ गया समिट, क्लाइमेक्स और क्रिसेंडो. समिट के बारे में बात करूं तो समिट भी वही है जो अटेनेबल टॉप मोस्ट पॉइंट है, दैट इज द समिट. तो समिट ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन, इस तरीके से यदि आप बोलते हो तो जहां तक जाया जा सकता है उस, नॉट द हाईएस्ट वन बट द अप्रोचेबल हाईएस्ट पॉइंट. राइट, दैट इज द समिट. क्लाइमेक्स वी ऑल नो क्लाइमेक्स क्या होता है. क्रिसेंडो, देखो क्रिसेंडो जैसे आप बोलते हो, ओपेरा यदि आपने सुना हो, है ना. सो ओपेरा में वो जिस तरीके से कई बार होता है, लोग कितने हाई पिच पे गाते हैं कि उन द ग्लास ग्लास गेट्स ब्रोकन. राइट. सो उनकी आवाज से वो चीज टूट जाती है. तो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वो वॉइस लाउड हो जाती है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं. दो आई डोंट नो कि कितना ये सही है कितना गलत है, बट वो कोरस वाला जो सिचुएशन है उसमें क्रिसेंडो बोलते हैं उसको. तो जो वॉइस बहुत हाई पिच की हो वो क्रिसेंडो में आती है. ठीक है. राइट. तो ये तो यूनी है. यूनी तो हम लोगों को पता ही है. ठीक है. यूनी, यूनी मतलब सिंगल, है ना. यूनी के साथ हम लोगों ने और वर्ड्स देखे थे. यूनी में हमने देखा था कि वन के लिए कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हम यूज करें. सो वन के लिए आई टोल्ड यू मोनो इज द प्रीफिक्स दैट वी कैन यूज. सोलो इज द प्रीफिक्स दैट वी कैन यूज. uni is something that we can use. Now whenever you talk about solo, it will give you the sense of being alone, but whenever you talk about solo, it will give you the sense of being single. Sir, if a person is single, that is when he is alone. Now that single nahi, single bole to counting wala single. समझे क्या.
हाँ, सो अभी यूनिसाइकिल बोला तो वन व्हील होगा, वो यूनिसाइकिल है। यूनिलैटरल मतलब होगा, मतलब ये किसी एक पक्ष के बारे में बात कर रहा है, सो यूनिलैटरल है। ऑलराइट, सो वन पार्ट decided by only one person or nation, that is unilateral. So bilateral is, अभी bilateral talks in between India and Pakistan, and when you talk about unilateral मतलब only one party is involved there, है ना, they are making the choices. Unique is something that is one of its kind, एक ही है, that is why we say it is unique. Then when we say unison, so as one they spoke in unison, so unison मतलब unanimously, unanimous, unanimous is the word that you can use here. ठीक है, आफ्टर दिस हमारे पास uh, ये वाला स्लाइड तो इजी था बिकॉज हम लोगों ने ये चीज कर ली थी। एक और स्लाइड है जिसपे मैं थोड़े से वर्ड्स और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चंस पे। 25 क्वेश्चंस वी हैव, ठीक है। दिस इज द वर्ड, दिस इज द लिस्ट, द लास्ट सेट ऑफ लिस्ट। इसके बाद फिर अपन चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। अब ये यहाँ पर बोल रहा है इन द फर्स्ट वन, सो द फर्स्ट वर्ड इज क्यूरिलस, ठीक है, क्यूरिलस। The first word is querulous. Now, when you talk about this word, the part of speech of this word is adjective, है ना? And this is when you're making the scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation, है ना? Vituperative, derogatory, disparaging, insulting, uh, vitriolic, demeaning, ठीक है, disgraceful, कंटेम्प्ट में जब आप हम बात करते हैं, है ना, इरेवरेंशियल, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आप वहां पर क्रिलेस वर्ड के लिए यूज कर सकते हो, है ना। सो यू इस व्हाट इज when you scandalously make claims about someone, so you have this intention to dem- uh, like say something which would be demeaning for that person. You want to say something intentionally which would be disrespectful for that person, है ना। So intentionally you are doing it. So querulous means to actually make those comments, है ना, with an intention to disrespect someone, with an intention to instigate someone. So these are all the words that you can use there. Vitriolic you can use, insulting you can use, disparaging is disrespecting, derogatory is disrespecting, vituperative is disrespecting, demeaning, है ना। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो यूज सर्टेन वर्ड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यार इनके साथ और भी, जैसे हमने पुरानी भी क्लासेस हैं उसमें भी हम लोगों ने कौन से, हाँ उसमें भी हम लोगों ने जो वर्ड्स पढ़े उसके क्लस्टर्स आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। इम्पिटी मतलब पिटी, कंपैशन होता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंपैशन, इट इज व्हेन यू सिंपैथाइज, व्हेन यू सिंपैथाइज यू हैव दैट सेंस ऑफ पिटी फ्रॉम विद इन, है ना, यू गेट दैट सेंस, तो पिटी वाला फील आपके अंदर आता है, दैट इज व्हेन यू सिंपैथाइज समवन। तो वो पिटी को हमने बोला, अब इम्पिटी यदि बोलोगे तो इम्पिटी इज लैक ऑफ पिटी, अब आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी दया भाव है नहीं, कोई दया का जज्बात तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए है नहीं, तो वो इम्पिटी हो गया, ठीक है। Blasphemy, blasphemy actually is the act of insulting a particular religion or religious belief or God. ठीक है, तो blasphemy. So he has indulged in an act of blasphemy, and that is why he met his fate. ठीक है। सो वहां पर क्या हुआ, यदि हम बोल रहे हैं कि यार इसने किसी भी रिलीजियस फिगर या किसी भगवान के लिए कुछ गलत या डिसरिस्पेक्टिंग चीज बोली, तो दिस एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग अ रिलीजन और अ गॉड is known as blasphemy. You can use, you can like make sure that you're done with this word because you can get this in one word substitution as well. तो आपको वहां पर भी ये वर्ड मिल सकता है। मूविंग फर्दर, profanity and प्रोफेनिटी के बारे में यदि आप बात करो तो प्रोफेनिटी बोलता है वर्ड्स दैट आर ऑफेंसिव बिकॉज ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग रिलीजन और ऑफेंसिव बिकॉज ऑफ बीइंग रूड सैक्रिलेज, ठीक है, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। तो समथिंग दैट इज सेक्रेड इज समथिंग दैट इज होली। अब उस चीज को आप डिसरेस्पेक्ट करो कि नहीं, मुझे तो ये पर्टिकुलर जो रिचुअल है ये पसंद ही नहीं है बिकॉज ये तो बकवास है, ये तो गधापन है, इस तरीके से यदि चीजें तुम बोलोगे तभी भी आप, दैट डिपेंड्स। देखो, डाइटी को इंसल्ट करना is another thing, है ना। If I am saying something against Allah or Ram or any other figure that we actually pray to,
ऑलराइट, वो एक अलग चीज हो जाएगी। अभी यदि मैं बोलूं कि कोई बंदा हार्ड हिंदुत्व से डर रहा है, अब हार्ड हिंदुत्व तो एक आइडियोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट हो गया। हमने बोला जो उससे डर रहा है वो, अब वो किसी लेवल पे मैंने उसको फोबिया बोल दिया। जैसे ये इस्लामोफोबिया यदि आपने बोला है, तो इस्लामोफोबिया इज नॉट समथिंग जो कि कहीं पर रजिस्टर्ड चीज है। Right? This is a school of thought which is believed by some people. So if you talk about the fraternities, what are fraternities? Fraternities, group of people believing in the same manner. So if 10 people are standing there and saying "Ki we are afraid of this particular scenario and that is why we have created our own term. So that is a different thing. They can make a lot of terms. है ना? उसको तो छोड़ दो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो वो एक अलग चीज है। ओके, सो यहां पर हमारे पास इतने वर्ड्स हम लोगों ने करे। नाउ द टाइम हैज कम टू चेक कि हम लोग इन्हीं वर्ड्स के करेक्ट आंसर ऑप्शन व्हेन वी आर कमिंग अक्रॉस द क्वेश्चंस ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्लाइड। यू हैव टू क्वेश्चंस गाइस, टू क्वेश्चंस हियर, द वेरी फर्स्ट स्लाइड। Okay, so here if you talk about this one, the use of the bullock cart is a uh, huh. So the use of the bullock carts is a superannuated mode of transportation. When you say superannuated mode of transportation, so superannuated is something that is old moded, something that is outdated, है ना? So already sidelined. So that is सुपर एन्यूटेड बोले तो ओल्ड मोडेड होना चाहिए, आउट ऑफ यूज होना चाहिए, ओल्ड फैशन होना चाहिए, टू ओल्ड टू बी यूज होना चाहिए। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज आउटडेटेड, चीपर नहीं आएगा वहां पर, क्विकर वहां पर नहीं आएगा, रूरल वहां पर आ नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज गोना बी बॉम्बे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी बॉम्बे, दैट इज एब्सोल्यूट इज समथिंग विच इज आउटडेटेड, है ना? कुरिलस बी आई टोल्ड यू इट इज when you insult someone, so it is not serious, it is not unjustified, it is not justified, it is insulting. So correct answer option for question number two is gonna be C, Calcutta for second. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, 4 and 5 on your screen. I'm giving you the time to just read these questions and mark your answers accordingly, then we will move further. Amenable to a peaceful settlement of the land dispute. Doubtful, unwilling, responsive, agreeable. Unilateral action may not be acceptable to them. Under pressure होता है unilateral, one sided होता है, strong होता है, harmful होता है, क्या होता है? The nexus between the Punjab militants and the Jammu and Kashmir terrorists has been established. So what is the meaning of the term nexus? Very good. So easy set. Question number three. Both the parties were amenable. यदि आप बोलोगे तो दैट इज पॉजिटिव ना, यदि वो पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्सिव बच जाता है, अनविलिंग और डाउटफुल हट जाता है ना? और समथिंग दैट इज एमिनेबल इज समथिंग अपॉन विच वी कैन अग्री। सो अग्रीडेबल हो गया, दैट इज अग्रीएबल हो गया, दैट इज एमिनेबल। तो फर्स्ट वन करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए आगरा। तो थर्ड का आंसर ए आगरा हुआ। फोर्थ, यूनिलेटरल इज यूनी मींस वन। अब देखो बात ही किधर हो रही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी बॉम्बे अगेन, बी बॉम्बे फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द नेक्सस, व्हेन यू से नेक्सस ऑफ क्रिमिनल्स, नेक्सस या सिंडिकेट, आप जब नेक्सस के बारे में बात करते हो तो वहां पर देयर आर पार्टीज विच आर एक्टिंग इन अकॉर्डिंग्स विथ वन अनदर्स अग्रीमेंट। ठीक है, तो वहां पर आप किसी चीज के कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हो। सो इट इज नॉट अबाउट राइवलरी, it is never about fight, it is about not about internal fighting. So correct answer option here is connection, and that is the
nexus. So I hope you have got the answers correct of this slide. जितने भी questions थे यहाँ पर, 3 questions were there. Now we will move further to the next set of questions. Yes, 6, 7, 8 on your screen. 6. His fidelity to the ideas of Mahatma Gandhi was exemplary. अभी fidelity क्या होता है? हम लोगों ने words पढ़े हैं. We have sanctioned his leave on compassionate grounds. Compassion. Jogging is considered an antidote to mental stress. Antidote is something which can work as a medicine. That is antidote. Poisonous चीजें होती है तो हमें antidote मिलता है. Antivenom. That is antidote. So, fidelity. If you talk about this, question number 6. Very good. A lot of correct answers. Mostly all the answers are correct. The correct answer option is not negative, not negative. Acceptance and loyalty. Now this person is adhering to this thing, है ना? तो यहाँ पर loyalty आएगा because इसका involvement ज्यादा है. So correct answer option for question number 6 is C. Calcutta. Question number 7. We have sanctioned his leave on compassionate grounds. तो compassion है तो pity होना चाहिए. Pity तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर. Pity यदि दिख नहीं रहा है तो हम क्या choose करेंगे? Mercy. So correct answer option for question number 7 is C. Calcutta again. Question number 8. Jogging is considered an antidote. So जैसे आपने antidote बोला, so वो remedy है. ठीक है? तो correct answer option is remedy. B. Bombay. For question number 8. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. 9, 10 and 11. All right. Phoenicia. Bengalis are innate poets. So innate is something that is inbuilt. Innate is something that is there with you from the very beginning of your life. So innate is something that is inborn. So correct answer option here is D. Delhi for question number 9. Question number 10. They connive to alert the police to the possibility of a bomb blast. So when you say they connive, so connive यदि बोलते हो आप, so you want to do something or to report something to a particular person secretly, है ना? तो चुपचाप से जाके पुलिस को बता दो कि शायद कुछ गलत होने वाला है. In that sense, so to conspire is the correct expression for question number 10. We have डन बोथ दी साइड्स. हमने ये थोड़े इजी रखे हैं बट हम लोगों ने वो सारे वर्ड्स करे हुए हैं एंड ऑप्शंस में से भी वो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आउट ऑफ द लिस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ओके, इट बिकेम एन इंस्टेंट ट्रूइज्म. ट्रूइज्म मींस ट्रुथफुलनेस. यदि आप उसके बारे में बात करोगे सो यहाँ पर ऑब्वियस ट्रुथ. सी कैलकाटा विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 11. हमारे पास कुछ 10 ऑड क्वेश्चंस और बचे हुए हैं. 10 to 12 ऑड क्वेश्चंस. ठीक है, सो बी विथ मी. हम इसको खत्म करते हैं, देन वी विल कॉल इट अ डे. All right. 12, 13 and 14. 12, 13 and 14. Now, bailiwick is something that refers to your area of passion or hobby. All right. We did not discuss this, and that is why I'm telling you it. All these words we have already discussed, except for the first one, so I've told you. So, question number 12. The industrial relations was his bailiwick. यदि बोलोगे आप इसको तो it was not his weakness. This is positive. All right. So it is his area of interest. It is his area of authority. It is his area of skill.
So correct answer option is B, Bombay for question number 12. Not failure, not foolishness, not weakness. Okay, these three were negative terms. So even if you had any idea about the tone of that particular word, you could have easily grasped it and guessed the correct answer option, because this is positive. If it is positive, so negative answer options responses तो वैसे ही eliminate हो जाने चाहिए. ठीक है. फिर आते हैं, it was altruism. Alter was other. Altruism is to always think about others. तो richness, hypocrisy, greatness और unselfish concern. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आएगा? अनसेल्फिश कंसर्न. क्यों? क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है. द लास्ट वन, मैग्नानिमिटी. मैग्नानिमस इज अ पर्सन हु इज noble, humble, generous. So correct answer option for question number 14 is B, Bombay. 15, 16, 17. Amenable, उससे ही निकला है amity. Insatiable and paramount. So question number 15, amity between neighboring countries. Again the positive है तो ये defense है, इसको हटा. Sorry, पॉजिटिव है तो ये डिफेंस है, आप इसको हटा सकते हो यहां से. देन यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमिटी, फिर कंपटीशन, नेगेटिव वर्ड्स. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर इज गोना बी ए, आगरा, व्हिच सेज हार्मनी शुड बी देयर. फिर क्वेश्चन नंबर 16, लीडर्स insatiable drive for power has weakened the government. Now insatiable is someone who cannot be satisfied, someone who cannot be brought into harmony, है ना. सो उसको समझाना मुश्किल है. ठीक है. सो impossible to satisfy. Correct answer option is D, Delhi for question number 16. Question number 17, his professional qualification was the paramount of value. Paramount means the peak. If it is the peak, advantageous, little, equal, or most important. Question number 17. Correct answer option is paramount. B, Bombay. So out of the given choices, you are supposed to go with the best one. जो भी पॉसिबली करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको लग रहा है, आपको बेस्ट हो सकता है आंसर ऑप्शन वहां पे ना मिले, तो आपको जो गिवन आंसर ऑप्शन है ना, उसमें से बेस्ट चूज करना है. सो आप थोड़े से न्यूट्रल रहो वहां पर उन क्वेश्चंस को मार्क करने में. 18, 19 एंड 20 गाइस. 18, 19 एंड 20. पैराडाइम, प्रोटोटाइप, पैराडाइम, एपिटोम. 18, 19 and 20, your responses. Very good, Ahmed. So correct answer option for question number 18. पैराडाइम यदि लिखा हुआ है कहीं पर, तो पैराडाइम में आप बात कर रहे हैं फॉर अ पर्सन हु इज द रोल मॉडल. जो एपिडोम बहुत ज्यादा उस चीज के लिए आप उसका आइडियल वर्जन मानते हो, आइडियल फिगर, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना, दैट इज पैराडाइम. पैरागन ऐसा एक वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो. पैरागन. ओके. So correct answer is model. Past is when you want to refer to thirst. है ना. अब जब thirsty है, someone's feeling thirsty means lack of water. So dry, to make something dry is the correct word for the term past. And if you talk about profusion is abundance. बहुत सारा amount है. Ample, है ना. That is 20. Profusion. So correct answer option here is A, Agra. सो ये 20 क्वेश्चंस को का सेट भी हम लोगों ने करने की कोशिश करी. ठीक है. और साथ ही साथ हम लोगों ने एक लिस्ट भी करी है. हाँ, पैरागन ऑफ अल्ट्रुइज्म, अ वेरी मैग्नानिमस पर्सन, रतन टाटा जी. मैग्नानिमस वो सारा वर्ड लिस्ट उनके लिए यूज हो सकता है. नोबल, हम्बल, है ना. फिर आप सोबर, सबलाइम, है ना, एमिएबल, बहुत सारे वर्ड्स हैं. एल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोप.
चलिए, सो आई होप कि ये जो सेशन रहा इसमें हम लोगों ने ये वर्ड्स करे, सो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपको आते भी होंगे, उनका एक रिविजन प्लस वर्ड क्लस्टर्स पे हम लोगों ने काम किया। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि यार यदि यही चीज हम लोगों को एग्जामिनेशन में मिलेगी तो किस फॉर्म में मिल सकती है, एंड दैट इज बाय द फॉर्मेट इन विच वी अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इज वाज दिस वन। ओके, सो आई होप इट वाज ऑफ सम हेल्प फॉर यू गाइस। आई होप कि आप लोगों के लिए ये चीजें सही चल रही होंगी। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टुमारो विथ सम ग्रामर। ओके, चलो, सी यू गाइस, बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सी इन द नेक्स्ट क्लास।